बहुत ही अच्छा सेशन होगा आज का। आई होप आप कुछ नई चीजें लर्न करेंगे इस सेशन से। सो लेट मी बिगिन विद 13 आर्टिकल 13 में हमने दो चीजों की बात कर ली थी। दैट द लॉस 13(1) talked about pre-constitutional laws that would be void and post-constitutional law that any law which contradicts the fundamental right that will also be void. But I have something to share that there were two cases. I have not mentioned in the PPT, but I am speaking of it. One was Deep Chand versus State of Uttar Pradesh. Yeah, it is not mentioned. So one was Deep Chand versus State of Uttar Pradesh, in which court said कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ would not be completely killed. It will be saved, but it will be inactive till the time it contradicts the fundamental right, जो कि हमने बीकाजी में भी पढ़ा था. तो इसका रीजनिंग क्या है? कैन समवन से व्हाट इज द रीजनिंग कि कोर्ट ने उसको किल नहीं किया, पहले वाले लॉ को सिर्फ डोरमेंट कर दिया, इनएक्टिव कर दिया. देयर इज अ पर्टिकुलर रीजनिंग बिफोर बिहाइंड इट, और आप चैट में मुझे वो रीजनिंग बता सकते हैं. द रीजनिंग इज कि कोई भी लॉ जब फॉर्म किया गया था बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, सो द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर वर नॉट अवेयर कि आगे चल के क्या होगा. उन्हें तो कुछ नहीं पता था कि आगे चल के फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट आएगा, उन फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स डेलीगेट होके आएंगे, और वो राइट हमारे अभी के लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे. तो ये पहले से तो कोई एज्यूम कर नहीं सकता. सो व्हाट वाज मेड बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए इतना स्ट्रिक्ट स्टैंड नहीं लिया गया. उसके लिए कहा गया आप इनको सिर्फ डोरमेंट कर दीजिए, इनको इनएक्टिव कर दीजिए एज लॉन्ग एज इट कॉन्ट्राडिक्ट फंडामेंटल राइट. क्योंकि जब जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बनाई गई, तो कोई इस बात को पहले तो सोच नहीं सकता. नो वन कैन गेस इट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट इज गोइंग टू वायलेट द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंtal right. So that is why in Deepchand case the court held that don't be so harsh on the laws. Those laws which contradict fundamental right, those pre-constitutional law should be like left dormant or inactive, but should not be killed completely. Then came Ambika Mills case. Now Ambika Mill case में court का stand थोड़ा different था. In Ambika Mill case 1974 the court said even for the post constitutional law, even for the post constitutional law, if a law is very important, if it is of very importance, then that law can also be saved. It can be said that it is not killed, it is just dormant. So the doctrine of eclipse can apply on post constitutional law also by the Ambika Mills case, but it will only be applicable on certain laws which are very important. It is not like that on every law which contradicts fundamental right you will apply doctrine of eclipse. So it was said in Ambika Mills case. तो ये कल की कुछ बातें थी. अब आज हम 13(3) से शुरू करेंगे और 13(4) को डिस्कस करेंगे, और बहुत मजा आने वाला है क्योंकि एक एक वर्ड से कैसे जुडिशरी एंड पार्लियामेंट हैज प्लेड विथ वर्ड्स, आपको आज लॉ का एकदम असली क्या कहते हैं क्लाइमेक्स पता चलेगा. सो द आर्टिकल 3 says we talked what is a state, but we never talked that what is laws. We are talking about that who can formulate law. Laws can be ultra virus if they violate the fundamental rights, but we didn't define that what is a law, what will come under the purview of law. So in this regard, article 13 clause 3 says that in this article, unless the context otherwise requires, law includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom, usage having having in the territory of India or the force of law. Laws in force includes law passed or made by legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed. मतलब इसमें everything was included in law. Like ordinance, you know, president promulgates certain ordinance, governor promulgate ordinances. That will come order, bylaw, rule, regulation. Even if MCD provides any notification, that will be also considered as a law under Article 13. That can't abridge or take away your fundamental right. So, if you will define Article 13, so everything, bylaw, rules, regulation, order, ordinance, everything came under the purview of laws. But there was very interesting thing which was left, and that was constitutional amendment word was not used in this. If you will read 13(3), you will not find constitutional amendment word in this. The 13 clause 4 was added by 24th constitutional amendment. So we are not going to deal with this at this particular time. We will deal with 13 clause 4 in later slides. So 13(3) says that laws will cover ordinance, order, bylaw, rules, regulation, notification, custom, uses. But it didn't say that it will cover constitutional amendment. So kya hua? Now came the first, and we have discussed about it. Now came the first constitutional amendment in 1951.
The very first amendment was challenged in the court, and that very first constitutional amendment created controversy before the court. Hua kya? What was the first constitutional amendment? Let me deal with it. The very basic. Okay, I can take you to the page of first constitutional amendment. It will be very good for you all. Yeah. Can you all see the screen? Is it visible that I have opened the first Constitutional Amendment Act 1951? If yes, then say yes in the chat. So the very basic feature, the basic reasoning, if you will read the statement and object of reason, it is mentioned here, statement and object of reason for bringing first Constitutional Amendment Act. It says that the main object of the bills are accordingly to amend Article 19 for the purpose indicated above and to insert fully provision for securing constitutional validity of zamindari abolition laws in general and certain specified state acts in particular. Matlab, after independence, there was a problem of differences between rich and poor. Certain people were had too many lands. बहुत अमीर थे, जमींदार लोग थे, बहुत जमीन थी. और कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में गरीबी बहुत ज्यादा थी. So in order to deal with this particular thing, गवर्नमेंट ने जमींदारी एबोलिशन लॉ लाया, जिससे उन्होंने लोगों की जमीन, जिनके पास एक्सेस जमीन है, वो ले लिया. दे रिक्वायर्ड सर्टेन लॉज कि आप इससे ज्यादा जमीन एक साथ नहीं रख सकते, ऐसे लॉज आए. तो इसमें आपने 15 को अमेंड किया, 19 को अमेंड किया, बहुत सारे अमेंडमेंट लाए गए. इन ऑर्डर टू, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वो मैंने आपको दिखा दिया. जमींदारी एबोलिशन लॉ को रिलेटेड था वो. लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी, बट आपने जैसे ये लाया, आप किसी की जमीन लोगे तो उनका फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो छिन जाएगा. आप जमींदारी अब वो नहीं कर सकते. उनका राइट टू प्रोफेशन जो आर्टिकल 19(1)(g) में है, वो छिन जाएगा. आर्टिकल 19(1)(g) क्या कहता है ये भी देख लेते हैं. आपके लिए सब कुछ खोल रखा है मैंने. आर्टिकल 19(1)(g) से इट गिव्स द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोविजन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. नाउ इफ it is a fundamental right of every person, even the zamindars, that yes, you can practice any profession. You can practice the profession of zamindari, but if the government will take away your land, then how can you practice this occupation? So the very first Constitutional Amendment Act, now let's come back to our PPT slides. The very first Constitutional Amendment Act, which challenged Article 19 and Article 15, there was amendment in Article 19 clause 6 was added in that by that particular amendment. 19 clause 6 says that nothing in this said clause, and they added certain reasonable restrictions that the government does. If you will see 6(2), the carrying on by state by a corporation owned or controlled by the state or any trade or business, industry, service, whether to the exclusion complete or partial of a citizen or otherwise. मतलब 19 clause 6 से add किया गया first constitutional amendment में, and this particular amendment gave state certain more powers to the extent that they can take away your land, and in taking away your land, they are going to harm that sacred right of occupation. Because in case of zamindars, जमींदारी क्या होती है? जमींदारी जमीन पे ही की जाती है. अगर आपके पास लैंड होगा तभी आप जमींदारी कर पाएंगे. बड़ी जमीन होगी तो आप उसको किराए पे देंगे, उस पर लेबर कराएंगे. बट अगर जमीन ही नहीं रहेगी आपके पास तो आप अपना प्रोफेशन कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे? तो शायद मैं क्लियर हूं कि पहला इशू क्या था. द फर्स्ट इशू वाज कि आपने 19 में हमारे पास जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, सो वी हैड दिस राइट दैट वी कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन. बट फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से 19 क्लॉज 6 ऐड कर दिया, और जिसमें कहा कि if the state want, then state can prevent you, or they can give reasonable restriction on operation of your occupation. So this was challenged. Sir, they are taking away our fundamental right. And another thing was challenged. If you will come to Article 15, you will find, first constitutional amendment, you will say that the amendment of the following Article 15 of the Constitution shall be added. This said that nothing in the Article 2, nothing in this article or clause 2 of 29 shall prevent state from making any special provision for the advancement of any socially and economically backward class of citizen for the scheduled caste and scheduled tribe. Now, there was another, sir, how only some land was taking and not all. I will take away all the doubts after this session. I don't want to break the flow because it is a bit complicated. So I want all the attention. So what happened now? 15 में भी add, आपको मैंने दिखाया 15 में भी amendment लाए, 15 clause 4 add कर दिया. Now what was 15(1)? Article 15(1) said that the state shall not discriminate any person, any citizen on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth, or gender, or any of them. Sorry. So earlier there was 15 clause 1, which said that the state cannot discriminate any person on religion, race, caste, sex, place, and on these grounds. So, but later on, by first constitutional amendment, they added 15 clause 4. This said
that state can make special provision for advancement of any socially and economically backward class of citizen. अब यहाँ तो contradiction हो गया. If you see the 15 clause 1 is a bit contradiction of 15 clause 4, because you are at one hand you are saying that we will treat every citizen equally irrespective of its race, caste, sex, religion. There is one thing, don't use word gender, use word sex, because gender has a different meaning as compared to sex when you define article 15 clause 1. So this is a mistake done by many students, वो lightly ले लेते हैं और gender word use करते हैं, but general is not the exact word. Gender की meaning कुछ और हो जाती है. So on these grounds the state cannot discriminate. Now you see, you know that अगर आप socially and educationally backward citizens के लिए क्या क्या provisions government लाती है, even SC/ST के लिए क्या provisions लाई आपको पता है, there are provisions of reservation. So in a way you are treating citizen of the equal country of the same country unequally. आप अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो, कुछ लोगों को आप रिजर्वेशन दे रहे हो या कुछ और भी बेनिफिट्स दे रहे हो और कुछ लोगों को नहीं दे रहे हो. तो ये बात चैलेंज हो गई कि सर 15(4) contradicts 15(1) because 15(1) said that state cannot discriminate and 15(4) is giving some special provisions to certain section of citizen, like for example scheduled caste and scheduled tribe and educationally backward classes. अगर आप इनको कुछ प्रिविलेज दे दोगे तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा 15(1) का? सो दिस वाज सेड इन इट वाज चैलेंज्ड इन शंकरी प्रसाद केस, क्योंकि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ, 15 क्लॉज 4 ऐड कर दिया which contradicted 15 clause 1. 19 clause 6 ऐड कर दिया which contradicted 19(1)(g). even it was about जमींदारी abolition law and they also introduced 9th schedule. जो 9th शेड्यूल की बात अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो इस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं 9th शेड्यूल भी ऐड किया, बस आपका इन्फॉर्मेशन. आई हैव इंक्रीज योर इन्फॉर्मेशन बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट 9th शेड्यूल. तो आपको ये पता चला कि इशू क्या था. इज द इशू क्लियर? देन आई विल मूव टू द आंसर. बट आपको पता चला कॉन्ट्रडिक्शन क्या था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, कॉन्ट्रडिक्शन क्या हुआ? अगर आपको समझ में आया व्हाट वाज द मेन इशू, काइंडली यस राइट यस. इफ यू आर नॉट क्लियर विद द इशू राइट नो. कि इशू क्या था, ये ट्रबल क्या क्रिएट हुआ? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाए, उसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट जो कुछ ऑलरेडी थे उनको ही कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले फंडामेंटल राइट्स ले आए. 19(1)(g), 19(6) ले आए, 15(4) ले आए. Now 15 clause 4 contradicted 15 clause 1, 19 clause 6 contradicted 19. So it was challenged in the court, शंकरी प्रसाद केस. बिकॉज आपको पता है अभी हमने आर्टिकल 13 पढ़ा. व्हाट डज आर्टिकल 13 सेज? आर्टिकल 13 clause 2 said that any law made post the commencement of constitution should not take away your fundamental right. So it is very well clear that any law cannot take away your fundamental right, and if there is any such law it will be held void. And in this particular case 15 clause 1 4 जो था वो 15 clause 1 को contradict कर रहा था, 19 clause 6 आपका 19(1)(g) ले रहा था. तो ये बात क्या है, जब 13(2) में मेंशन्ड है कि आप ऐसे लॉज बना ही नहीं सकते जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करे, 13(2) में लिखा है, तो आपने ऐसे लॉ कैसे बना दिए? तो इस बात को चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद केस में. तो शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ, कोर्ट ने एक बात बताई कि सर देखिए समझिए, पेटिशनर को समझाया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर. गवर्नमेंट के पास पावर बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक ऑर्डिनरी लीगल पावर होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर होता है. क्या डिफरेंस है? ऑर्डिनरी लीगल पावर है जैसे कि ऑर्डिनेंस, बिल, ये सब वो ऑर्डिनरी लीगल पावर है. आप असेंबली में आपने एक लॉ पास कर दिया, आपने, तो वो क्या है? ऑर्डिनरी लीगल पावर है. एक बिल आई, पास हो गई. एक आपने नोटिफिकेशन जनरेट कर दिया, दैट इज ऑर्डिनरी लीगल पावर. कोई आपकी अथॉरिटी ने कोई नोटिफिकेशन बताया, ऑर्डिनरी लीगल पावर. बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पावर होता है, वो अलग पावर है लेजिस्लेट करने का. पावर लेजिस्लेट करने का 2 तरीका है, एक ऑर्डिनरी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जो आर्टिकल 368 में मेंशन्ड है. 368 में प्रोसीजर दिया था अर्लियर, देयर वाज प्रोसीजर लेड डाउन दैट हाउ कैन constitution can be amended by the parliament. It was laid in article 368. So कोर्ट ने समझाया कि ऑर्डिनरी लीगल पावर्स एक चीज होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पावर अलग होता है. उन्होंने कहा कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में ऑर्डिनरी लीगल पावर की बात करी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करी ही नहीं गई है. सो दे आर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो ऐसा कर सकते हैं जो आपका फंडामेंटल राइट्स ले. समझ रहे हैं आप? मतलब कि 13 क्लॉज 3 में देखें अगर आप फिर से डेफिनेशन, तो यहाँ पे कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर्ड यूज नहीं है. यहाँ पे ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, दीज वर्ड्स आर यूज्ड, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर्ड इज नॉट यूज्ड. सो द कोर्ट सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट power is a different kind of power which is not under the purview of article 13 clause 3.
अब थर्ड मतलब वो लॉ ही नहीं है। अगर लॉ नहीं है तो 13 क्या कहता था, कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट टेक अवे करे। बट कोर्ट ने शंकरी प्रसाद में कह दिया सर ये तो लॉ है ही नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। क्योंकि लॉ जो है, लॉ डिफाइंड है 13(3) में, और उसकी डेफिनेशन में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर्ड नहीं आता है। तो ये शंकरी प्रसाद का स्टैंड था जिसमें कोर्ट ने फर्स्ट अमेंडमेंट की वैलिडिटी रख दी। उन्होंने कहा ये कंप्लीटली वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज even if it is taking away the fundamental rights, it is abridging a fundamental right, it is not under the purview of 13 clause 3, it is not a law, it is a constitutional amendment, and 13 clause 3 does not say that constitutional amendment will also come under the purview of law. आपको ये बात समझ में आई तो यस कहिए प्लीज, ताकि हम आगे बढ़ें। if I am clear on this point कि शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बताया। so प्लीज अगर समझ में आया तो यस करिए सो दैट आई कैन मूव फर्दर। तो शंकरी प्रसाद में कोर्ट ने कह दिया कि 13(3) में जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात नहीं करता, इट डज नॉट डील विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट डील्स विद सिंपल लेजिस्लेटिव पावर्स, एंड दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, so this does not come under the purview of 13 clause 3, so it upheld the validity of first constitutional amendment, and it said that there is no wrong in making 15 clause 4 and 19 clause 6। तो ये तो रख दिया गया। now let me एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, very small story, बहुत जगह आप मिलता है, नेट पे मिल जाता है, लोग सुनाते हैं, इट्स ट्रू और नॉट, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन एक स्टोरी बहुत चलती है कि द फादर ऑफ पंडित नेहरू वाज मोतीलाल नेहरू, ही वाज वेरी एमिनेंट लॉयर। तो इट इज सेड दैट एक पर्टिकुलर उनका क्लाइंट था, तो उनको फांसी की सजा हुई थी, डेथ सेंटेंस दे दिया गया था। सो व्हेन ही वाज हैंग, तो जैसे ही उसने, जब उनको फांसी लगा रहे थे, तो जैसे ही फांसी लगाने के लिए जो भी वो रॉड होता है जिनको वो पीछे करते हैं, जैसे उन्होंने पीछे किया ग्रिल को, तो फांसी लग गई थी, और उसके बाद डेड बॉडी टंगती, थोड़ी देर तक फांसी लगी रहती, तभी तो किसी की मृत्यु होती है, तुरंत तो कोई मर नहीं जाता है। तो जैसे ही उन्होंने ग्रिल खींचा, तभी मोतीलाल नेहरू ने कह दिया बस बस रुक जाओ, अब पूरी फांसी मत लगाओ। तो जो सुपरिटेंडेंट था जेल का, उन्होंने कहा सर व्हाई आर यू स्टॉपिंग अस, बिकॉज द कोर्ट हैज सेड दैट कि इनको फांसी लगा दिया जाए। उनका एक पर्टिकुलर क्लाइंट को फांसी लग गई थी। सो ही सेड दैट कोर्ट हैज सेड दैट इनको कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए, ही शुड बी हैंग्ड। So Motilal Nehru said that the court said that he should be hanged, but the court never said that till when, कब तक hang करें, ये तो कभी कहा नहीं गया। It was just said that he should be hanged. Now you have hanged him, your work is done. Now remove the rope, take him out. So by that particular case, that guy was saved, and in later cases the court said hang till death. So एक एक वर्ड का कितना मीनिंग है मैं आपको इस इंस्टेंस से बता रहा था कि आगे चल के कोर्ट हैंग नहीं करता था, पहले कहता था किसी को हैंग कर दीजिए, बट देन दे स्टार्टेड सेइंग दैट इन केस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट हैंग देम टिल डेथ, जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक हैंग करिए। क्योंकि मोतीलाल नेहरू वेरी वेल यूज द वर्ड्स कि आपने तो हैंग कहा ना सर, यू नेवर सेड दैट हैंग टिल डेथ, द ऑर्डर ऑफ कोर्ट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। सो दिस वाज मींस रीजनिंग, देखिए आप क्या क्या रीजनिंग लॉयर्स लगा देते हैं। इट इज इंटरनेट पे आपको ये स्टोरी बहुत जगह मिल जाएगी, बट कितना सत्य है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये कांग्रेस की वेबसाइट पे डेक्कन हेराल्ड पे मिलता है। डेक्कन हेराल्ड इज अ न्यूज़पेपर व्हिच इज क्वाइट सपोर्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो ये मैं आपको बता रहा था वर्ड्स की वैल्यू जो शंकरी प्रसाद केस में हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर्ड वाज नॉट डिफाइंड। अगर कोई लेमैन पढ़ेगा इसको डेफिनेशन को, तो उसको लगेगा एवरीथिंग विल कम अंडर द पर्व्यू ऑफ लॉ इफ एनी लेमैन विल रीड, बट इट वाज द Shankari Prasad case judgment when court said that constitutional amendment does not come under the purview of law. अब सिर्फ ऐसा नहीं है, ये वर्ड की स्टोरी अभी यहीं खत्म नहीं हुई, एक एक वर्ड की कहानी आगे भी, आगे और स्टोरी है। लेट्स मूव फर्दर। देयर वाज अ टसल बिटवीन शंकरी प्रसाद केस एंड गोलकनाथ केस। अब आपने गोलकनाथ केस तो अपहेल्ड कर दिया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी रख दी, बट लोग फिर चले गए चैलेंज करने गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ बंधु जो थे, गोलकनाथ ब्रदर्स वर लैंडलॉर्ड्स, उनके ये सब इश्यूज, ये सब केसेस एंड पिटिशन वर फाइल्ड बाय जमींदार्स, रिच लैंडलॉर्ड्स, बिकॉज द गवर्नमेंट वाज टेकिंग अवे देयर लैंड, सो दे थॉट दैट देयर फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड। सो गोलकनाथ केस वाज इवन मोर इंटरेस्टिंग केस। इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस को अपहेल्ड कर दिया, उसको अपहेल्ड नहीं किया, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, एंड ही सेड सर शंकरी प्रसाद केस में जजमेंट गलत है, हम सही जजमेंट देते हैं। व्हाट डज आर्टिकल 368 सेज? इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलग चीज होती है, शंकरी प्रसाद में तो ये कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज गिवन इन आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दे सेड, गोलकनाथ सेड दैट 368 का जो अगर आप हेडिंग पढ़ेंगे, पहले हेडिंग 368 रेट्स द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ गलत वर्ड लिख दिया मैंने, प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट रीड्स द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
368 read it. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 में क्या लिखा है? 368 gives the procedure to the amendment of the constitution, but 368 do not confer the power to amend constitution on to the parliament. कोर्ट ने कहा ये चीज तो लिखी है कि ये तरीका है, this is the process to amend the constitution, but where is it written that parliament has the power to amend the constitution? मतलब एक और बहुत गजब कॉन्ट्राडिक्टरी चीज होगी, जैसे कि हमने यहाँ वर्ड की बात करी थी, तो यहाँ भी वर्ड की बात होगी कि प्रोसीजर वर्ड लिखा हुआ है, यू कैन कि what is the way of amending, but it is not written that parliament has the power to amend, because nowhere it was mentioned that this article talks about the power of parliament to amend the constitution. It was only mentioned the procedure of amendment. एक तरीका दिया था कि ऐसे ऐसे बिल पास होगा तो ऐसे करके वो अमेंड होगा, बट ये कहीं नहीं लिखा था कि पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकता. दिस पावर वाज नॉट कन्फर्ड. तो ये एक बहुत बेतुकी सी बात हो गई. गोलकनाथ केस में कोर्ट ने कह दिया द प्रोसीजर इज लेड डाउन अंडर 368, द पावर इज नॉट लेड डाउन बिकॉज नोवेयर इट इज मेंशन्ड दैट पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इज विद पार्लियामेंट. जबकि उसमें अगर आप प्रोसीजर पढ़ेंगे तो प्रोसीजर में सब कुछ पार्लियामेंट ही फंक्शन कर रही है, बट उन्होंने कहा पावर वर्ड यूज नहीं है कहीं पे. तो ये इसको अगर हम एक एग्जांपल से कंपेयर करें तो इट इज लाइक कि आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया, आप कॉलेज में गए, आपने फीस भरी, आपने पूरा फीस पे कर दिया, एंड यू सेड टू द कोर्ट दैट दिस वाज 1 लाख रुपीस. The court, the college administration said that yes, your admission is confirmed. Then you asked, sir, from when the classes is going to start? And the college administration says ki classes. This was just for admission, na? This was not for the classes. This fees which you paid is just for admission. It is not for the classes. So it was similar to that example कि उन्होंने कहा कि प्रोसीजर तो दिया है, पावर कहाँ दिया हुआ है? लिखा है प्रोसीजर है कि पार्लियामेंट ऐसे ऐसे करता है, बट ये कहाँ लिखा है कि पार्लियामेंट करेगा, दिस इज पावर इज कन्फर्ड, दिस वाज सेड. तो इसका मैंने एक एग्जांपल लिया कि आपकी एडमिशन ले ली किसी कॉलेज ने और कहा कि हमने तो एडमिशन की फीस ली ना, हमने क्लासेस करवाने की फीस थोड़ी ना ली. सो इस तरीके का सिचुएशन हो गया था. बट पार्लियामेंट वाज आल्सो एडमेंट. दे सेड ओके, you have the issue with the word power, so parliament brought 24th amendment and it said कि सर जी we are going to add power word. उसके बाद 368 का लाइन चेंज हो गया. earlier 368 said procedure to amend the constitution, but now 368 read the power to amend the constitution and the procedure to do so. समझ रहे हैं आप? there was a change. पहले power word यूज नहीं था, अब सिर्फ procedure word था. अब क्या हो गया, अब पार्लियामेंट ने कहा कि गोलकनाथ जजमेंट में जबकि शंकरी प्रसाद को अपहेल्ड कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया गया था, तो कोर्ट ने पार्लियामेंट ने कहा ठीक है, आपको दिक्कत है कि इसमें पावर वर्ड नहीं है, तो हम अमेंड करके पावर ले आ देते हैं. तो फिर कोर्ट ने कहा फिर आपने अमेंड कर दिया. when there is no power of amendment given to the parliament, how can you amend? Because in Golaknath case the court said that you don't have power, there is a procedure but there is not the power, and the parliament amended the provision of that 368 and wrote down the word power. So again this was the issue. आप समझ रहे हो क्या इशू हो गया? Am I clear? तो यस करिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है. तो कोर्ट ने कहा पावर वर्ड यूज नहीं है, तो पार्लियामेंट ने पावर वर्ड लगा दिया. तो कोर्ट ने फिर कहा सर जब पावर आपके पास था ही नहीं तो आप उसको अमेंड करके कैसे उसमें कोई वर्ड यूज ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. सो एकदम पूरा हैरागिरी हो गया था. दिस वाज फियास्को आफ्टर दिस गोलकनाथ केस. सो इट वाज फाइनली सेटल्ड इन द केशवानंदा भारती. तो 24th अमेंडमेंट आया जिससे उन्होंने पावर वर्ड ऐड किया था. तो even they added this by 24th amendment, they added that 13 clause 4. Now let me come back जो मैंने पहले describe नहीं किया था. 13 clause 4 said that nothing in this article shall apply to any amendment of the constitution made under article 368. उन्होंने कहा कि 368 में यानी ये जो अमेंडमेंट पावर है उसको लेकर के 13 पे एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ के अंडर नहीं आएगा. ये बात इन्होंने 24th अमेंडमेंट से कर दी थी. क्यों? क्योंकि 24th अमेंडमेंट गोलकनाथ का जो जजमेंट था वो पार्लियामेंट के खिलाफ था. इट वाज अगेंस्ट द पार्लियामेंट बिकॉज द गोलकनाथ सेड दैट द 368 ओनली मेंशंस द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. इट डज नॉट कन्फर द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. सो द एंड देन द गवर्नमेंट in the parliament in retaliation to that brought 24th amendment and added the word power in the article 368. तो आप देख रहे हैं एक एक वर्ड से कैसे कितना बड़ा बड़ा केस हो जाता था. 4 जज 5 जज 7 जजेस, इतने बड़े बड़े बेंच बैठती थी जजेस की, एंड दे यूज्ड टू डिस्कस द मैटर्स. फिर केशवानंदा भारती हुआ फाइनली जब बहुत सारे इश्यूज हो गए, बहुत सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए केशवानंदा भारती ने कहा स्टॉप ऑल दिस, ये फालतू की डिबेट है, लेट्स कम टू द क्रैक्स ऑफ द मैटर कि what can be amended and what cannot be amended. So he said that केशवानंदा भारती ने 24th constitutional amendment को वैलिड कर दिया. उन्होंने कहा ठीक है,
जो अमेंडमेंट लाई है पार्लियामेंट वो जेन्युइन है कि वो पावर वर्ड ऐड कर रही है प्रोसीजर 368 में, इट इज जेन्युइन। उन्होंने 13 में क्लॉज 4 भी ऐड कर दिया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई। आप देखोगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अमेंडमेंट जो होगा वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में आ सकता है। इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि 13 is the article which saves any law to violate fundamental right. But in 13 itself, 13 clause 4 says that constitutional amendment does not come under the purview of law. So they can, if you will think, the meaning of this is that they can take away your fundamental right. But in the Keshwananda Bharti case, the court said that that the parliament has power to amend. First of all, the discussion about whether they have power or not. So yes, they had the power to amend the constitution. They can amend any part of the constitution. तभी एक और डिबेट चल रही थी, फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं. This debate was also going. So the court held that you can amend anything in the constitution, and the parliament is very well competent and powerful to amend any part of the constitution. But it said that there is one restriction, and that one restriction is that you cannot amend the basic structure of the constitution. Constitution के basic structure को आप change नहीं कर सकते. For example, अगर कोई चाय है, you know there are a lot of tea, black tea, yellow tea, milk tea, lot of tea, but all of them are tea only, na? So there is one character you can differentiate that yes, all of these are tea. Although there are some differences between them, one is black tea, one is milk tea, but there is some component present in all those teas, ना? तो उसी तरीके से कोर्ट ने भी कहा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है वो रहना चाहिए, यू कैन नॉट टेक अवे दैट. बाकी चीजें आप अमेंड कर सकते हो और आप पावरफुल हो, आप कॉम्पिटेंट हो. गोलकनाथ केस को उन्होंने केशवानंदा भारती ने लेट डाउन कर दिया और उन्होंने कहा नो, द पार्लियामेंट इज वेरी मच पावरफुल एंड कॉम्पिटेंट टू make law, make amendment in the constitution, but that amendment cannot take away the basic structure. और सबसे मजे की बात ये हुई, the court did not define the basic structure. उन्होंने एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी बेसिक स्ट्रक्चर की, और ये ना देने का बहुत अच्छा कारण था, बिकॉज इफ द कोर्ट वुड हैव डिफाइंड बेसिक स्ट्रक्चर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैसे एक एक वर्ड पे ऑन इवन अ सिंगल वर्ड दे आर चेंजिंग द कंप्लीट सिनेरियो. So the government, the Supreme Court did not define basic structure. That what is the definition of basic structure? So that in future, if Parliament does any act which takes away our fundamental right or any right which is very sacred, so the court said that no, this is a basic structure. You cannot do this kind of amendment. So the court saved this right for him, and the court said that you can amend anything, but you cannot amend the basic structure. And who will say कि basic structure क्या है? ये तो कोर्ट बताएगा. तो आने वाले टाइम में आप कोई भी लॉ लेके आए तो कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है. अगर कोर्ट ने एक डेफिनेशन रख दी होती ना, तो पार्लियामेंट आप देख रहे हो एक एक वर्ड से चेंज कर देते हैं, तो हो सकता है किसी और प्रोविजन का मिसयूज करके पार्लियामेंट कोई और तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स छीन लेती. और मैंने कल डिस्कस किया था कितना सैक्रेड होता है फंडामेंटल राइट्स. आई डिस्कस्ड विद दैट एग्जांपल ऑफ टेंपल, मनी प्लेस्ड इन द टेंपल, वी कैन नॉट टेक अवे दैट. सो उस तरीके का मैंने एक एग्जांपल भी आपसे लिया था. सो द कोर्ट सेड दैट you can amend but you cannot take away the basic structure, and the court did not told the exhaustive list कि क्या क्या चीजें basic structure में आती है, but there are certain elements जो अलग अलग cases में बताए गए हैं कि ये basic structure में आता है, जैसे कि secularism. ऐसा बोमाई केस में कहा गया था that secularism comes under the basic structure. मतलब secularism का provision parliament आपसे नहीं छीन सकती. If you have right to religion, then parliament cannot take away the right to religion. वैसे अभी CBSE की बुक से ये secularism का concept हटा दिया गया है from class 11 Paul Science के बुक. तो अभी की गवर्नमेंट तो पता नहीं कैसे काम कर रही है, उनका तो अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, बट कोई इशू नहीं है. सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको टेक अवे नहीं कर सकते. राइट टू रिलीजन कैन नॉट बी अमेंडेड. फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैन नॉट बी टेकन अवे. इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. दिस इज वेरी बेसिक थ्रेड. फेडरलिज्म आपको पता है, ये भी आप टेक अवे नहीं कर सकते. एक्सेस टू जस्टिस, आपको कोर्ट के पास जाने से हम नहीं रोक सकते. दिस इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म में प्राइम मिनिस्टर होता है, एमपी होता है, राज्यसभा लोकसभा का कॉन्सेप्ट है. दिस कैन नॉट बी टेकन अवे. द सेपरेशन ऑफ पावर, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कैन नॉट बी टेकन अवे. सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर व्हिच हैज बीन डिफाइंड बाय द कोर्ट इन डिफरेंट जजमेंट, बट वी डोंट हैव अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हिच कम अंडर द परव्यू ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की पूरी तरीके से क्या क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती है ये डिफाइन नहीं है. कोर्ट टाइम एंड अगेन बताता रहता है कि ये चीज भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये नहीं है. So the parliament has the power to amend anything but not basic structure. It was held in Keshwananda Bharti case, Keshwananda Bharti versus state of Kerala. Okay, this question comes कि Keshwananda Bharti का judgment का date क्या है? This is very important.
बिकॉज इसके बाद से सब कुछ चेंज हो गया आफ्टर दिस जजमेंट. द कोर्ट कैन नॉट अमेंड एनीथिंग व्हिच कम्स अंडर द परव्यू ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. तो अगर आप सोचें सुपीरियर कौन हुआ, सुपीरियर पार्लियामेंट हुई या जुडिशरी हुई? आप मैसेज में बताएं हु बिकेम द सुपीरियर आफ्टर केशवानंद भारती, द पार्लियामेंट और द जुडिशरी? सो क्योंकि पार्लियामेंट ने कह दिया आप कुछ भी लॉ बना सकते हैं, बट ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर लाए. रिधि कह रही है जुडिशरी, सिद्धार्थ कह रहे हैं जुडिशरी, श्रेया जुडिशरी, रिया जुडिशरी, हर्षिता जुडिशरी. नो, मैं बताता हूँ, शिवांशी का आंसर सही है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन हो गया. क्योंकि सर आप क्या नहीं टेक अवे कर सकते, आप बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का तो टेक अवे नहीं कर सकते ना. तो द कोर्ट सेड दैट नीदर यू नॉर मी, ये जो बैटल कर रहे हो, लड़ाई कब से किए जा रहे हो कि पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है कि कोर्ट के पास ज्यादा पावर है. हम कुछ भी अमेंडमेंट ला सकते हैं, पार्लियामेंट कह रहा नहीं आप कुछ, कोर्ट कह रहा आप कुछ भी नहीं ला सकते हैं, हमारे पास एक चेक एंड बैलेंस है. तो अल्टीमेटली दिस डिबेट वाज सेटल्ड एंड केशवानंद भारती ने कहा ना तुम ना मैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर. बट कॉन्स्टिट्यूशन को सुपीरियर करके कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने खुद को बता दिया कि हम पार्लियामेंट से तो सुपीरियर हम हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा सुपीरियर हम नहीं है, बट पार्लियामेंट से तो सुपीरियर हम हैं, कहीं ना कहीं बता दिया. सो अल्टीमेटली द मोस्ट सुपीरियर एलिमेंट इन आवर डेमोक्रेसी इज द कॉन्स्टिट्यूशन, द मोस्ट सेक्रेट थिंग इज कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए कहीं भी कुछ बवाल होता है, आप कुछ भी सुनते हैं अपने पॉलिटिशियंस को, तो दे ऑलवेज से दैट आई विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो हमारे संविधान में ये बात कही गई है. हर जगह इसको इतनी राइट, इतनी प्रिविलेज इसलिए दी जाती है बिकॉज द मोस्ट सुप्रीम थिंग, द मदर लॉ, द फंडामेंटल लॉ इज द कॉन्स्टिट्यूशन. तो केशवानंद भारती में वेरी वेल कह दिया कि आप कुछ भी ला सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़खानी नहीं कर सकते आप कॉन्स्टिट्यूशन की, कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल दो, जो मेन एलिमेंट है वो चेंज कर दो, ये आप नहीं कर सकते. अगर आपको आज के सेशन से कोई भी डाउट है तो प्लीज मैसेज करिए चैट पे, आई विल रिप्लाई. किसी भी तरीके का डाउट है बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के, या फिर ये लेकर के कि अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे अमेंडमेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं. तो अब मेरे को लगता है आर्टिकल 13 भी क्लियर हो गया. आज आर्टिकल 13 हमने डिस्कस कर लिया, हम 15 डिस्कस करेंगे. आई हैव नॉट डिस्कस्ड आर्टिकल 15. मैंने आर्टिकल 13 डिस्कस करने के लिए मैंने 15 का एक एग्जांपल लिया. अभी हम 15, 19 सबको सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं. इट वाज जस्ट टू कंप्लीट इन आर्टिकल 13 बिकॉज इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. इट टॉक्स अबाउट जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू का जो कंट्री में पावर है वो किस आर्टिकल के अंडर है? इट इज अंडर आर्टिकल 13 बिकॉज आर्टिकल 13 से हु चेक, हु डज दिस, कौन इंस्पेक्ट करता है कि कोई पर्टिकुलर लॉ फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? इट इज द कोर्ट हु इंस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज देयर एनी लॉ व्हिच इज इन कंट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट और नॉट. सो आर्टिकल 13 is judicial review, so it is very important. That is why I took one class on 13 only, क्योंकि ये सब शंकर प्रसाद का केस इंपॉर्टेंट है. इवन दिस गोलकनाथ केस इज इंपॉर्टेंट इन केशवानंदा भारती. वी विल बी अगेन टॉकिंग ऑफ दिस केस इन लेटर पार्ट. आगे भी यूज आते हैं अलग अलग केसेस का, बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि कोर्ट ने शंकरी प्रसाद में क्या कह दिया कि लॉ के परव्यू में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता ही नहीं है. तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से द पार्लियामेंट कैन टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट एज it is not safeguarded under article 13 because article 13 defines law, and law does not, and under the definition of law constitutional amendment word is not mentioned. But later on in Golaknath case the court again, अब कोर्ट को स्ट्रक डाउन तो करना था क्योंकि इससे क्या हो गया था, पार्लियामेंट के पास बहुत ज्यादा पावर आ गई थी. अब वो अमेंडमेंट लाके कुछ भी कह सकते थे. दे कैन से दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विल बी वर्क एज अ सर्वेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, नो वन कैन क्रिटिसाइज द प्राइम मिनिस्टर. ऐसे कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला देते वो, and then they will say that constitutional amendment is outside the purview of fundamental rights and outside the purview of article 13, so you cannot strike down. We are very much competent. तो इसको हेड ऑन करने के लिए गोलकनाथ केस आया. जुडिशरी ने एक अपनी रीजनिंग दी, जुडिशरी ने दिमाग लगाया कि सर कैसे कॉन्ट्राडिक्ट किया जाए. तो जुडिशरी ने पहले आर्टिकल 368 पढ़ा जिसमें लिखा था प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. सो जुडिशरी सेड दैट वी हैव द प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, but it is not said that there is power conferred on the parliament that you can amend the constitution. but उसमें लिखा है, प्रोसीजर पढ़ोगे तो प्रोसीजर में यही लिखा है कि पार्लियामेंट कैसे काम करती है, बट स्पेसिफिकली ये वर्ड नहीं लिखा है. दैट पावर वर्ड इज नॉट यूज्ड, that we have given you the power to do that. Give me 1 second please. Kshitij sir, can I talk with you in a minute? I mean, thank you. So yeah, I was talking about the power word. So the power was not conferred. It was not written the power is conferred with the parliament. ये word तो use किया नहीं गया. So we can say that the power was not with the parliament. You can't do this kind of amendment. But later on, they bring 24th amendment और उन्होंने power word add कर लिया. Parliament added the word power in 368 and said that now we have the power. Now we can amend anything. But again it was challenged.
in Kesavananda Bharati case. And in Kesavananda Bharati said court settled all these debates कि भैया पावर आपके पास प्रॉपर है, आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो, but that amendment cannot be such a nature that you are taking away the basic structure of constitution. You are destroying the basic structure of the constitution. Basic structure के कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिए हैं. This is an exhaustive list. हम सारे एग्जांपल डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट टाइम एंड अगेन कोई नई चीज को बेसिक स्ट्रक्चर बताता रहता है.